آئے ہم کچھ وقت خدا کے کلام کا مطالعہ واضح عنوان روحانی مقدس سرزمین کی زیارت سے کرنے میں گزارتے ہیں۔ مسیحیت میں زیارت کے لیے سب سے عام جگہ کہاں ہے؟ بہت سے مسیحی یروشلم جاتے ہیں، تو پھر ہمیں روحانی مقدس سرزمین کی زیارت کے لیے کہاں جانا چاہیے؟ کیا روحانی یروشلم کی زیارت کرنا فطری بات نہیں ہے؟ یروشلم کی زیارت واقعی ایک بامعنی زیارت ہے، جبکہ دیگر مقدس سرزمینوں کی زیارت بھی اہم ہے۔ لوگ یروشلم کی زیارت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ بس کیا آسمانی ماں یعنی روحانی یروشلم کے پاس آنا سب سے اہم اور بامعنی زیارت نہیں ہے؟ اس وجہ سے روح اور دلہن کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آج ہم خدا کی مرضی کے بارے میں کتاب مقدس میں سے خدا کے کلام کا جائزہ لیتے ہیں، جو ہمیں خدا کے پاس آنے اور ان سے ملنے کے لیے بیدار کرتا ہے، تاکہ ان کے وسیلہ ہم اپنی تمام روحانی برکات اور امیدیں پوری کر سکیں۔ آئے مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب سے دیکھتے ہیں۔ مکاشفہ باب 1 آیت 1۔ یسوع مسیح کا مکاشفہ، جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور اس نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا، جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی کی، یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھیں، شہادت دی۔ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ سب سے اہم پہلو جس پر آج ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ روحانی مقدس سرزمین کی زیارت ہے۔ اس کی گہری اہمیت کا جائزہ لیتے ہوئے ہم اس سوال پر پہنچتے ہیں کہ کون یروشلم آسمانی ماں کے پاس آتا ہے؟ آیت 3 کہتی ہے، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے مبارک ہیں۔ نیز مبارک ہیں وہ جو اس میں لکھی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ کیا ہم نبوت کے کلام کو نہ صرف پڑھنے اور سننے بلکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے کی حالت میں نہیں ہیں؟ اب ہم انہیں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور ان پر عمل کر رہے ہیں۔ کتاب مقدس نبوت کرتی ہے کہ ہر ایک کو یروشلم آسمانی ماں کی طرف لوٹنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اس نبوت کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اسے سنتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایسی نبوت کے بارے میں نہ تو سنا ہے نہ پڑھا ہے، اور یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ کتاب مقدس میں ہے۔ تاہم ساری دنیا میں سیون کے تمام فرزند نبوت کے کلام کو پڑھتے، سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ بس ہم سب کو یقیناً وہ بننا چاہیے جو اس حقیقت کے لیے ہمیشہ خدا کو شکر اور جلال دیتے ہیں کہ اب ہم تینوں برکات حاصل کر رہے ہیں: پڑھنے کی برکت، سننے کی برکت اور اس پر عمل کرنے کی برکت۔ تو پھر کیا کتاب مقدس میں نبوت کے کلام کو پڑھنا، سننا اور اس پر عمل کرنا خدا کی مرضی نہیں ہے؟ یروشلم آسمانی ماں کے حوالے سے کتاب مقدس کیا نبوت کرتی ہے؟ آئیں غلطیوں باب 4 آیت 26 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ غلطیوں باب 4 آیت 26۔ مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے، اور وہی وہ کون ہے؟ ہماری ماں ہے۔ کیا یروشلم نامی ایک شہر نہیں ہے جسے داؤد نے اس زمین پر بنایا تھا؟ جب دنیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ مقدس سرزمین کی زیارت پر جا رہے ہیں تو وہ صرف جسمانی یروشلم پر اپنے ذہنوں کو مرکوز کرتے ہیں اور وہاں اپنے قدم بڑھاتے ہیں۔ تاہم خدا ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کر رہے ہیں کہ اس زمین پر جسمانی یروشلم
रूहानी यरूशलेम आसमानी माँ को जाहिर करने के लिए महज एक अक्स के तौर पर वजूद रखता है। क्या उन्होंने आगाह नहीं किया? मगर आलम बाला की यरूशलेम आजाद है और वही हमारी माँ है। आइए हम आयत 27 से देखते हैं। क्योंकि लिखा है कि ऐ बाँझ, तू जिसके औलाद नहीं होती खुशी मना, तू जो दर्द जैसे नावाकिफ है आवाज बुलंद करके चिल्ला, क्योंकि बेकस छोड़ी हुई की औलाद शोहर वाले की औलाद से ज्यादा होगी। बस ऐ भाइयों, हम इजहा की तरह वादा के फर्जंद हैं, और जैसे उस वक्त जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता था वैसे ही अब भी होता है। मगर किताब मुक़द्दस क्या कहती है? ये कि लोंडी और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि लोंडी का बेटा आजाद के बेटे के साथ हरगिज वारिस ना होगा। बस ऐ भाइयों, हम लोंडी के फर्जंद नहीं बल्कि आजाद के हैं। आमीन। किताब मुक़द्दस गलतियों की किताब से हमें बताती है कि आलम बाला की यरूशलेम आसमानी माँ के फर्जंद आसमान की बादशाही के वारिस हैं, जो हर एक मिरास के वारिस होंगे। हमें ना सिर्फ इसे पढ़ना और सुनना चाहिए बल्कि हमेशा उनके फर्जंद बनने की हालत में रहने की कोशिश करनी चाहिए। सही? तो फिर आसमानी माँ के फर्जंद बनने के मामले के हवाले से आइए मुकाशफा बाब 22 पर एक नजर डालते हैं। आइए हम किताब मुक़द्दस के मुकाशफा बाब 22 में दीगर नबूवती मनाज़र का जायजा लेते हैं। बाब 22 आयत 17 में यह लिखा है कि और रूह और दुल्हन कहती हैं, तसलीस के लिहाज से रूह से मुराद खुदा बाप हैं। हमारे लिए हमारे बाप की दुल्हन कौन है? वो हमारी माँ है। मेहरबानी से गौर से सुने कि बाप और माँ क्या कहते हैं। बाप और माँ क्या कहते हैं? आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। इसलिए हमें हमेशा की जिंदगी पाने के लिए बाप और माँ के पास आना चाहिए। क्या हमें नहीं आना चाहिए? दुनिया भर में बहुत से लोग किसी भी दूसरी जगह की निस्बत यरूशलेम की ज़ियारत करना चाहते हैं। वाकई ऐसे बहुत से लोग हैं जो यरूशलेम जाने को अपनी जिंदगी भर की ख्वाहिश बनाते हैं। आबे हयात और अब्दी जिंदगी का मंबा कहाँ है जिसके हमें तालिब होना चाहिए? क्या ये आसमानी बाप और आसमानी माँ से नहीं मिलते हैं? आबे हयात तब तक वजूद नहीं रख सकता जब तक कि बाप और माँ की तरफ से ना दिया जाए। ये लिखा है, जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। किताब मुक़द्दस की नबूवत के मुताबिक हमें वो जगह ढूंढनी चाहिए जहां खुदा बाप और खुदा माँ रहते हैं, जो रूह और दुल्हन हैं। जो लोग खुदा बाप और खुदा माँ से मिलते हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा मुबारक हैं। बेशक हम वाकई मुबारक हैं। हम पहले ही यरूशलेम के बाहों में रहते हैं। हमें यरूशलेम से तसल्ली मिलती है और हम यरूशलेम के बख्शे गए आबे हयात की बरकत में रहते हैं। हमें हमेशा इसे याद रखना चाहिए। इस वजह से किताब मुक़द्दस उनके बारे में क्या कहती है जो नबूवत के कलाम को पढ़ते, सुनते और जो कुछ उसमें लिखा है उस पर अमल करते हैं, वो मुबारक हैं। इसलिए जो लोग यरूशलेम आसमानी माँ के पास आते हैं वो रूहानी मुक़द्दस सरजमीन की ज़ियारत पर हैं। आइए हम यिर्मयाह बाब 3 की तरफ जाते हैं। नबियों ने यरूशलेम के बारे में नबूवतों को पूरी किताब मुक़द्दस में दर्ज किया। बाब 3 आयत 17। आइए बाब 3 आयत 17 से देखते हैं। उस वक्त यरूशलेम खुदावंद का तख्त कहलाएगा और उसमें यानी यरूशलेम में सब कौमें वो क्या करेंगी? खुदावंद के नाम से जमा होंगी। कौमें कहाँ जमा होंगी? सब कौमें यरूशलेम में जमा होंगी, खुदावंद के नाम से जमा होंगी, और वो फिर अपने बुरे दिल की सख्ती की पैरवी ना करेंगे।
उन अयाम में यहूदा का घराना इसराइल के घराने के साथ चलेगा। वो मिलकर शिमाल के मुल्क में से, उस मुल्क में जिसे मैंने तुम्हारे बाप दादा को मिरास में दिया, आएंगे। यहां यह लिखा है, यरूशलेम खुदावंद का तख्त कहलाएगा, और उसमें यानी यरूशलेम में सब कौमें खुदावंद के नाम से जमा होंगी। सादा अल्फाज में यह मुकद्दस सरजमीन की जियारत है। यकीनन एक नबूवती दिन आएगा जब तमाम लोग यरूशलेम आसमानी माँ का जलाल देखने के लिए जमा होंगे। यिर्मयाह की किताब तकरीबन 2700 साल पहले लिखी गई नबूवत है। आइए हम यसाया बाब 66 पर भी जाते हैं। यरूशलेम में तसल्ली पाने के मामले के हवाले से यसाया नबी ने कुछ यूं नबूवत की थी। यसाया बाब 66 आयत 10, तुम यरूशलेम के साथ खुशी मनाओ और उसके सबब से शादमान हो। उसके सब दोस्तों जो उसके लिए मातम करते थे, उसके साथ निहायत खुश हो, ताकि तुम दूध पियो और उसके तसल्ली के पिस्तानों से सैर हो, ताकि तुम निचोड़ो और उसकी शौकत की फरावानी से हज उठाओ। क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं सलामती नहर की मानिंद और कौमों की दौलत सैलाब की तरह उसके पास रवां करूंगा। तब तुम दूध पियोगे और बगल में उठाए जाओगे और घुटनों पर कूदाए जाओगे। जिस तरह माँ अपने बेटे को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुमको दिलासा दूंगा। यरूशलेम ही में तुम तसल्ली पाओगे। यरूशलेम में सब कौमें जमा होंगी। इस नबूवत के अलावा यसाया बाब 66 नबूवत करता है कि वो सब जो यरूशलेम से मोहब्बत रखते हैं, उसके घुटनों पर कुदाए जाएंगे और वो यरूशलेम ही में तसल्ली पाएंगे। आए बाब 60 की तरफ जाते हैं। हम यसाया बाब 60 आयत 1 से देखते हैं। उठ मुनव्वर हो, क्योंकि तेरा नूर आ गया और खुदावंद का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ। क्योंकि देख, तारीकी जमीन पर छा जाएगी और तीरगी उम्मतों पर, लेकिन खुदावंद तुझ पर ताले होगा और उसका जलाल तुझ पर नुमाया होगा। और कौमें तेरी रोशनी की तरफ आएंगी और सलातीन तेरे तलू के तजल्ली में चलेंगे। अपनी आंखें उठाकर चारों तरफ देख, वो सब के सब इकट्ठे होते हैं और तेरे पास आते हैं। तेरे बेटे दूर से आएंगे और तेरी बेटियों को गोद में उठाकर लाएंगे। तब तू देखेगी और मुनव्वर होगी। हाँ, तेरा दिल उछलेगा और कुशादा होगा। यसाया बाब 60 की पेशनगोइयां भी उसी ज़मरे में आती हैं जिसका जिक्र मुकाशफा बाब 1 में किया गया है, जहां यह लिखा है कि नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। बहुत से लोग मुकद्दस सरजमीन की जियारत के लिए जिस्मानी यरूशलेम के तालिब होते हैं, लेकिन सयून के फर्जंद जियारत के लिए यरूशलेम आसमानी माँ के तालिब हैं। दुनिया के लोगों और हमारे दरमियान यही फर्क है। वो दुनियावी चीजों का पीछा करते हैं जबकि हम रूहानी चीजों का पीछा करते हैं। उनके पास जिस्मानी नुक्ता नजर है, जबकि हमारे पास नबूवत की आंखें और ईमान की आंखें हैं और हम रूहानी यरूशलेम की जाने बढ़ रहे हैं। आयत 4 दोबारा देखते हैं। अपनी आंखें उठाकर चारों तरफ देख, वो सब के सब इकट्ठे होते हैं और तेरे पास आते हैं। वो सब के सब इकट्ठे होते हैं और यरूशलेम आसमानी माँ के पास आते हैं। मुकद्दस सरजमीन की जियारत के लिए जिस्मानी यरूशलेम में जाने वाले दुनिया के लोग तमाम रूहानी आसमानी फरजंदों का अक्स हैं जो यरूशलेम आसमानी माँ की तरफ लौट रहे हैं। आयत 4 दोबारा देखते हैं। अपनी आंखें उठाकर चारों तरफ देख, वो सब के सब इकट्ठे होते हैं और तेरे पास आते हैं। तेरे बेटे दूर से आएंगे और तेरी बेटियों को गोद में उठाकर लाएंगे। अगरचे ये नबूवत 2700 साल पहले की गई थी, लेकिन अब ये बिल्कुल सही तौर पर पूरी हो रही है। आयत 8 देखते हैं। ये कौन है जो बादल की तरह उड़े चले आते हैं और जैसे कबूतर अपनी काबू की तरफ। आयत 12 पर जाते हैं।
کیونکہ وہ قوم اور وہ مملکت جو تیری خدمت گزاری نہ کرے گی برباد ہو جائے گی. ہاں وہ قومیں بالکل ہلاک کی جائیں گی. آیت 14 پر جاتے ہیں. اور تیرے غارت گروں کے بیٹے تیرے سامنے جھکتے ہوئے آئیں گے اور تیری تحقیر کرنے والے سب تیرے قدموں پر گریں گے اور وہ تیرا نام خداوند کا شہر اسرائیل کے قدوس کا صیون رکھیں گے. آیت 20 کی طرف جاتے ہیں. تیرا سورج پھر کبھی نہ ڈھلے گا اور تیرے چاند کو زوال نہ ہوگا کیونکہ خداوند تیرا ابدی نور ہوگا اور تیرے ماتم کے دن ختم ہو جائیں گے. آیت 22 کی طرف جاتے ہیں. سب سے چھوٹا 1000 ہو جائے گا اور سب سے حقیر ایک زبردست قوم. میں خداوند عین وقت پر یہ سب کچھ جلد کروں گا. جس دن یروشلم کا جلال تاریک دنیا کو روشن کرتے ہوئے ساری دنیا پر چمکے گا، اس دن تمام قومیں یروشلم آسمانی ماں کی طرف لوٹ آئیں گی. اور یہ مجھے سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا میرا عہدہ واقعی خدا کی طرف سے ایک برکت نہیں ہے؟ کتاب مقدس اور تمام انبیاء نبوت کرتے ہیں کہ روحانی مقدس سرزمین کا مرکز یروشلم آسمانی ماں ہے. کتاب مقدس یروشلم میں جمع ہونے والے سب لوگوں کے متعلق نبوتوں سے بھری پڑی ہے. آئیں یسایہ باب 49 کی طرف جاتے ہیں. یسایہ باب 49 آیت 18. اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف نظر کر، یہ سب کے سب مل کر اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں. خداوند فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تو یقیناً ان سب کو زیور کی مانند پہن لے گی اور ان سے دلہن کی مانند آراستہ ہوگی، کیونکہ تیری ویران اور اجڑی جگہوں میں اور تیرے برباد ملک میں اب یقیناً بسنے والے گنجائش سے زیادہ ہوں گے اور تجھ کو غارت کرنے والے دور ہو جائیں گے. بلکہ تیرے وہ بیٹے جو تجھ سے لے لیے گئے تھے تیرے کانوں میں پھر کہیں گے کہ بسنے کی جگہ بہت تنگ ہے، ہم کو بسنے کی جگہ دے. تب تو اپنے دل میں کہے گی، کون میرے لیے ان کا باپ ہوا کہ میں تو لاولد ہو گئی اور اکیلی تھی. میں تو جلا وطنی اور آوارگی میں رہی، سو کس نے ان کو پالا؟ دیکھ میں تو اکیلی رہ گئی تھی، پھر یہ کہاں تھے؟ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں قوموں پر ہاتھ اٹھاؤں گا اور امتوں پر اپنا جھنڈا کھڑا کروں گا اور وہ تیرے بیٹوں کو اپنی گود میں لیے آئیں گے اور تیری بیٹیوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر پہنچائیں گے اور بادشاہ تیرے مربی ہوں گے اور ان کی بیویاں تیری دایا ہوں گی. وہ تیرے سامنے منہ کے بل زمین پر گریں گے اور تیرے پاؤں کی خاک چاٹیں گے اور تو جانے گی کہ میں ہی خداوند ہوں جس کے منتظر شرمندہ نہ ہوں گے. یسایہ باب 49 کی یہ آیت بھی ہم پر اس حقیقت کو بیدار کرتی ہے کہ فرزند یروشلم آسمانی ماں کے پاس لوٹ آئیں گے. آئیں یسایہ باب 62 کی طرف جاتے ہیں. یسایہ باب 62 آیت 6. اے یروشلم، میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں، وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہوں گے. اے خداوند کا ذکر کرنے والوں، خاموش نہ ہو. اور جب تک وہ خدا نے کس کو قائم کیا ہے؟ یروشلم کو قائم کرنے کا مطلب ہمیں ہماری روحانی ماں یروشلم کے وجود سے آگاہ کرنا ہے. یروشلم کو قائم کر کے وہ اسے کیا بنائیں گے؟ روئی زمین پر محمود نہ بنائے، اسے آرام نہ لینے دو. آخر کار ہمارا کردار یروشلم کی دیواروں پر نگہبان کے طور پر خدمت کرنا ہے. تو پھر ہمیں دنیا کے تمام لوگوں کے سامنے کس کا اعلان کرنا چاہیے؟ ہمیں یروشلم کے جلال کا اعلان اور منادی کرنے چاہیے. ہمیں یہ اعلان کرنے کے قابل ہونا چاہیے کہ یروشلم آسمانی ماں کو قبول کرنا اور ان سے ملنا مقدس سرزمین کی سب سے مبارک زیارت ہے. کیا ہمیں اعلان نہیں کرنا چاہیے؟ یہی وجہ ہے کہ روح اور دلہن
मुकाशफा बाब 22 आयत 17 में दुनिया के तमाम फर्जंदों से कहते हैं कि हमारे पास आओ। इसके अलावा खुदा कहते हैं कि सब कौमें यरूशलेम में पहुंचेंगी। वो ये भी नबूवत करते हैं कि बादशाह तेरे मुरब्बी होंगे और उनकी बीवियां तेरी दाया होंगी। वो तेरे सामने मुंह के बल जमीन पर गिरेंगे और तेरे पांव की खाक चाटेंगे। खुदा ने तमाम नबूवतों को यसाया बाब 62, 66, 60 और 49, गलतियों बाब 4 और मुकाशफा बाब 22 जंजीर की कड़ियों की तरह एक साथ जोड़ा है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि हमारे तमाम खोए भाई और बहनें आसमानी यरूशलेम माँ की बाहों में लौट आएंगे। दुनिया के लोग अब तक इसे नहीं जानते हैं। हम सबको समझना चाहिए कि रूहानी यरूशलेम की ज़ियारत करना सबसे मुबारक काम है और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने का वाहिद तरीका है। इसलिए अमाल की किताब बाब 1 में जब खुदा 2000 साल पहले यसू के नाम से इस ज़मीन पर आए, तब उन्होंने कहा यरूशलेम से बाहर ना जाओ बल्कि यरूशलेम में ही रहो। तब तुम आसमान से वो तोहफा पाओगे जिसका मेरे बाप ने वादा किया है। उन्हें क्या तोहफा मिला था? क्या उन्होंने पेंतिकोस्त के दिन पर पहली बरसात का रूल कुछ हासिल नहीं किया था? आइए हम अमाल की किताब के पहले बाब की तरफ जाते हैं। जिस्मानी यरूशलेम भी है और रूहानी यरूशलेम भी है। मेहरबानी से समझें कि ये खुदा की मर्जी है कि हम जिस्मानी यरूशलेम के जरिए से रूहानी यरूशलेम को समझें। आइए अमाल की किताब बाब 1 आयत 3 पर एक नजर डालते हैं। हम बाब 1 आयत 3 देखते हैं। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचा वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि उनका हुक्म क्या था? यरूशलेम से बाहर ना जाओ। क्या रूल कुछ हासिल करने के लिए उनका यरूशलेम में होना जरूरी था? वो ना सिर्फ यरूशलेम में बल्कि यरीहो और दमिश्क में भी इसे हासिल कर सकते थे। ये दूसरी जगहों पर भी हासिल किया जा सकता है। ताहम यसू ने खास तौर पर हिदायत की यरूशलेम से बाहर ना जाओ, यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। इसलिए यसू के हुक्म की पैरवी करते हुए शागिर्दों ने यसू के आसमान पर उठाए जाने के दिन से लेकर 10 दिनों तक मुस्तदी से दुआ की थी। और अमाल बाब 2 में पेंतिकोस्त के दिन पर उन्हें क्या मिला था? वो पहली बरसात के रूह कुद्स से भर गए थे। यहां जैसा कि यसू ने यरूशलेम से बाहर ना जाने पर जोर दिया, आखिरी दिनों में जब हम आसमानी माँ यानी रूहानी यरूशलेम में सुकूनत करेंगे, तो क्या हम रूह कुद्स से मामूर नहीं होंगे? इसीलिए 2700 साल पहले यसाया और यिर्मयाह जैसे नबियों ने दर्ज किया कि दुनिया के तमाम लोग यरूशलेम में जमा होंगे। यसाया बाब 60 में यह कहा गया है कि जब यरूशलेम का जलाल चमकेगा तो बादशाह और कौमें उसके नूर में आएंगे और उसके बेटे दूर से आएंगे। ये लिखा है, ये कौन है जो बादलों की तरह उड़े चले आते हैं जैसे कबूतर अपने काबू की तरफ? ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि खुदा ने यरूशलेम के निगहबानों को हुक्म दिया कि हरगिज खामोश ना रहें, जैसा कि यसाया बाब 62 में लिखा है। मजीद बरा, जब तक यरूशलेम दुनिया में महमूद ना बन जाए, तब तक उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें आराम नहीं करना चाहिए, बल्कि यरूशलेम के मुतल्लिक नबूवतों को बताते हुए उसके जलाल का ऐलान करना चाहिए। हम रूह कुद्स के आखिरी जमाना में रह रहे हैं। शैतान इब्लीस आसमानी माँ के साथ दुश्मनी में है। जैसा कि पैदाइश बाब 3 आयत 15 में खुदा ने नबूवत की थी कि मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा। तमाम बने नूह इंसान
शैतान के गलबे में हैं और उसके पांव तले हैं और उसकी कुदरत और इख्तियार के सबब से सिताए हुए हैं। ताहम ऐसे लोग भी हैं जो शैतान के जबर में नहीं हैं। मुकाशफा बाब 12 आयत 17 के मुताबिक वो कौन है? वो औरत की बाकी औलाद हैं। क्या औरत की बाकी औलाद वो नहीं है जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती और यसू की गवाही देने पर मजबूती से कायम है? खुदा ने सिर्फ उन लोगों को आसमान में शाही काहिन का ओहदा बख्शा है और उनके लिए हमेशा की जिंदगी और अब्दी बरकत को हासिल करने के लिए एक जलाली राह तैयार की है। इसलिए क्या ये हमारा मुस्तकबिल नहीं है क्योंकि हम आसमानी बाप और आसमानी माँ की पैरवी करते हैं? बहुत से लोग आसमानी माँ पर हमारे ईमान में खलल डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें यकीन है कि खुदा बाप ही मसीह की दूसरी आमद है। बाप ने क्या कहा कि वो किसकी पैरवी करते हैं? चूंकि बाप माँ की पैरवी करते हैं, तो फिर हम उनके फर्जंदों को क्या करना चाहिए? क्या माँ की पैरवी करना अकलमंदाना और सबसे ज्यादा फहमी रास्ता नहीं है? वो राह बाप की राह है, वो राह माँ की राह है और वो राह आसमान की बादशाही की राह है। हमें उस राह पर चलना चाहिए। इसलिए मीका बाब 4 क्या कहता है कि वो हमें सिखाएंगे? ये लिखा है कि वो हमें अपनी राहें सिखाएंगे ताकि हम उनकी राह पर चल सकें। ये अल्फाज के मैं माँ की पैरवी करता हूं हमने दर्ज नहीं किए थे। ये किसकी तालीम है? ये बाप की तालीम है। इसलिए हम भी आखिर तक इस राह पर चलें ताकि हम वो आसमानी फर्जंद बने जो आसमान की अब्दी बादशाही में आसमानी माँ के साथ अब्दी जिंदगी और बरकत से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। ये उन लोगों के बारे में क्या कहती है जो इस नबूवत के कलाम को पढ़ते, सुनते और इस पर अमल करते हैं? ये कहा गया है कि वो मुबारक हैं। जो लोग आसमानी बरकत को हासिल करेंगे वो कलाम को देख सकते, सुन सकते, महसूस कर सकते और समझ सकते हैं। लेकिन उनके बारे में क्या कहेंगे जो आसमानी बरकत हासिल नहीं करेंगे? वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। अगरचे उनके पास दिल है मगर वो इसमें फर्क नहीं कर सकते। लेकिन मुबारक है तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। आए हम किताब मुक़द्दस की तालीमात के साथ एक बार फिर यसू के कलाम को गहराई से अपने दिलों पर कंधा करें। हमें अपनी रूहानी ज़ियारत के लिए कहाँ जाना चाहिए? यरूशलेम की तरफ। मुझे उम्मीद है कि हम सब बहुत से लोगों को यरूशलेम आसमानी माँ की ज़ियारत के मुतालिक आगाह करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस वास रूहानी मुक़द्दस सरज़मीन की ज़ियारत के जरिए फजल हासिल करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।